Ji, sir. We would now request the participants not to leave the session because we are already late. So we are not going to have any break and we'll start with the first session. So I would now request Shweta ma'am to please introduce Dr. Kiran Lata Dangwal ma'am for the next session. Shweta, you are not audible. Voice is not coming. श्वेता मैम आप म्यूट हो, प्लीज आप ऑन कर लो. Yes, yes. No, you are still mute. There is some technical glitch. Welcome, Professor Dangwal. I've seen you many forums, but it is first time that you are coming to DTU virtually. So it is our pleasure that you are going to take this first after inaugural session, first technical session. We believe that Delhi Teachers University will be benefited, and I've seen your magnificent profile, madam. I'm very impressed that you have achieved so many things, and we are in the same fraternity of teacher education. And I invite you that sometime you visit Delhi, so we'll have a face-to-face session for our students. Welcome, Dr. Kiran Datta Dangwal. Thank you, sir. Thank you so much. And you are doing very nice work for in the field of teacher education. And really, it is very nice to see all the time many posts in Facebook, as well as I'm aware about many other things also, whatever you all are doing, especially Dr. Trishala when told me about this program. So let's start today's session. Thank you once again. Good morning, everyone. And I hope I'm properly audible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So it is indeed a proud privilege and honor for me
to interact with the Learnet Forum as a resource person in this program. And my heartfelt thanks to Professor Dhananjay Joshi ji and Dr. Trishala for inviting me. Just a moment. And please let me know whether it is visible or not. Okay, thank you. Ma'am, would it be possible to make it full screen? Yeah, I'm trying. Just a moment. So, Dr. Trishala has given me the topic about the AI in education, and which is really need of the hour to know about the AI, because we can understand that what AI is doing now in our life as well as in our academic life, and how to work on it, how to know what to know about it, and many other aspects are there. Just we can think about few things. It will be my request to all of you, whenever I'll ask questions, please be interactive, because if I'll be one way, then you can understand that in future also only AI is going to control you. Whatever AI will say, you have to do that only. So be interactive like human beings, like participants. So let's imagine if this question is from all of you, and just imagine if you are given the chance, or when these three things, whatever I'm going to tell you, when these three things will be possible in future, what you will choose out of these three things, like teleportation, and I hope you know about all these things. Teleportation means जब आप सोचते हैं कि हम इस शहर चले जाएं, इस जगह चले जाएं, तो बस सोचने मात्र से चले जाएं, टेलीपोर्टेशन. सेकेंड इज इनविजिबिलिटी, गायब हो जाना. आपने देखा होगा बहुत सारे शोज में इनविजिबिलिटी. एंड टाइम ट्रेवलिंग, इफ आई वांट टू ट्रेवल इनटू माय पास्ट, फिर से हम अपने बचपन में जाना चाहें तो चले जाएं, फ्यूचर में जाना चाहें तो चले जाएं. जस्ट इमेजिन अबाउट दीज थिंग्स एंड गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स. व्हाट विल यू प्रेफर? इन तीन चीजों में से आप किस में जाना चाहेंगे? एंड विल इट बी पॉसिबल इन फ्यूचर? कई बार तो हम लोग जापानीज टेक्निक्स देखते हैं, एंड इन दोज टेक्निक्स वी कैन सी दैट यस, दे ऑल आर डूइंग दीज थिंग्स. टेलीपोर्टेशन, इनविजिबिलिटी, टाइम ट्रेवलिंग, और जो मूवीज में हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें पॉसिबल दिखाई जा रही हैं. लेकिन अगर हम ऐसे ही सोच लें, अभी हमारा मन हो और हम सीधे दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं और वहां से लेक्चर देना शुरू कर दें विद इन फ्यू सेकेंड्स, इज इट पॉसिबल? जस्ट इन चीजों को जब हम सोचते हैं तो बड़ा अजीब सा फील होता है. लेकिन आप कभी इमेजिन करके देखिए. वंस अपॉन अ टाइम आई रेड अ पोएम अबाउट द एंड हिज पोएम वाज ऑफ अशोक चक्रधर. ही इज हास्य कवि, और उन्होंने अपनी पोएम में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था. एक उन्होंने कहा कि एक बार मुझे रास्ते में एक यंत्र मिला, और वो यंत्र इतना मजेदार था कि जैसे ही हमने उसको अपने पास रखा तो मेरे सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो मुझे पता चलने लगा. तो ये कविता उन्होंने बहुत साल पहले लिखी थी, लेकिन आज वो उसको विजुलाइज करें तो लगता है कि यस, नाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज the machine in front of which we are sitting, that machine is able to know about each and everything what is going आप सोचते हैं सारी चीजें वो आपको किसी न किसी फॉर्म में बता देता है. तो ये ऐसी मशीन अब जो हम कल्पना करते थे, नाउ दैट मशीन इज इन फ्रंट ऑफ अस. So you can see that what is happening in the present era just because of the AI. And those who are not able to know about all these latest technologies, you can see in this picture that what will happen. कि हेडेक्स के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हेडेक होता है, बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट
all these latest technologies related to AI, then what type of headache you will have, especially in the field of education, especially when I have heard the lecture of Professor Joshi. He was saying that we are not aware about the pedagogy and we are teaching in various fields, in various subjects also we are teaching without knowing the pedagogy. And in the same way, if we are not able to know about the AI, how we will teach, how we will come to know the latest technologies, latest things, what is happening in this present era. So in this digital transformation, when everything is changing, what you need to do, what you need to know, what you need to learn, that is very, very important, because these days now definition of literacy is also changed. Means the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. This is very, very important. Those who cannot learn, unlearn, and relearn. And the transformation in technology has changed the very outlook of our livelihood. With so many innovations and new ideas, the scenario is changing day by day. Every time we are seeing the changes in our education system, in our lives, and everywhere. So you can understand that digital empowerment of teachers is very, very important. Means the digital empowerment of teachers encompasses a multifaceted approach aimed at the enabling teachers and students to thrive in the digital age. And digital empowerment not only enhances teachers' capabilities, but also contributes to the overall development and resilience of educational communities in an increasingly interconnected world. Means when we are living in a global village, that is why we need to know each and everything. Yeah. So why teachers and educators need to be trained in the current education scenario to teach about the AI? That is the big question, and that we need to know about all these things. So you can see, because technology is influencing our life, and how technology is influencing, you can see in these slides that technology has become an integral part of our daily lives. हर दिन, हर समय, हर पल. Now you cannot imagine your life without the technology. हम चाहें चाहे न चाहें, अब टेक्नोलॉजी हमारे एक लाइफ का इनबिल्ट पार्ट बन गया है कि हम उससे अलग हो नहीं सकते हैं. तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी, because technology is becoming an integral part of our lives, and it has both positive and negative effects on our behavior, attitude, emotions, all these things. Now you can see in this slide that we have become dependent on autocorrect. ये बहुत regular feature हो गया है हमारी लाइफ का, कि we all have seen, we all have been in situation where we accidentally send messages with a typo or misspelled words, and we rely on the autocorrect to save us from the embarrassment. कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमर का कारण भी बन जाता है कि हम लिखना कुछ चाहते थे और मशीन ने कुछ लिख दिया. कई बार हम कहते हैं हार्टफेल्ट थैंक्स, और वो हार्टफेल्ट की जगह हार्ट बर्न लिख देता है. तो सोचिए, जब हम ऐसी चीज़ों को सेंड कर देते हैं ऑटोमेटिक, तो सिचुएशन क्या हो सकती है. देन सोशल मीडिया, दैट इज ऑल्सो becoming a very, very essential part these days. We now have access to a wider audience, and we can connect with people from all over the world with just few clicks. और अब आप ये देखिए कि now we are prone to FOMO. Can anyone tell me about the abbreviation of this particular word, FOMO? FOMO. Any one of you, please unmute yourself and let me know. Fear of missing out. Very right. Khyati Ji Tiwari has written, okay, very right. Fear of missing out. And this is happening. कि हमें हर समय लगता है, ओह, अगर हमने मोबाइल नहीं छुआ या कंप्यूटर में ईमेल नहीं देखा या मैसेज नहीं देखा, तो कुछ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है हमसे छूट जाएगा. और ये ऑब्सेशन बन गया है.
And these things are, and this is creating a culture of oversharing. हर समय हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और ये चीजें एक कंटिन्यूस प्रोसेस बनती जा रही हैं. And next is, we can't live without our smartphones. Yes, this is happening now. Smartphones are becoming our very good friends, and all online love hate relationship is there. कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई मैसेज या इमोजी, हमने जो स्माइली भेजना था, स्माइली की जगह फ्यूरियस रेड वाला इमोजी गलती से चला गया, तो उसी समय ब्रेकअप. उसी समय लगता है अरे अब इस व्यक्ति से तो मुझे बात नहीं करनी है, मेरे उस पर इसने ऐसा कमेंट कर दिया. दैट मे बी बिकॉज ऑफ मिस्टेक. लेकिन फिर भी ये सारी चीजें जो ह्यूमन बीइंग एरर करता था, वो एरर अगर इसमें हो जाती है तो हमारा पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है. वर्चुअल असिस्टेंट्स, दे आर बिकमिंग अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर. कि हम घर में भी अब आप देखिए जो हमारे नए सेटअप हो रहे हैं कि वी आर जस्ट गिविंग कमांड्स एंड दे आर ओबेइंग अस, और उसके बाद ओबे ही नहीं कर रहे हैं. अभी देखिए एआई का इतना रिसेंटली आई हैव रेड अ स्टोरी, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया था. उस स्टोरी में उसमें उन्होंने कहा कि वर्चुअल असिस्टेंट वो डेली काम करता. अब वर्चुअल असिस्टेंट ने एक दिन बहुत माइन्यूटली गौर किया कि इस घर में क्या होता है. मैं सबके लिए काम करता हूँ, सुबह अलार्म भी बजाता हूँ, मैं घंटी भी बजने पे दरवाजा भी खोलता हूँ, मैं किचन में भी वर्क, मैं सब कुछ कर रहा हूँ. तो अब ये लोग हर संडे को तो छुट्टी लेते हैं, लेकिन मेरी छुट्टी क्यों नहीं होती है. बस एआई समझ गया, उसने सीधे कहा कि अब मैं भी एक दिन छुट्टी लूंगा. और उसने ऑटो सिस्टम अपना ऐसा किया कि उसने घर के लोगों से कह दिया कि जैसे ही वो लोग दूसरे दिन उठे, एआई ने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि टुडे आई एम आल्सो ऑन लीव, आप अपने काम खुद करो. अब क्योंकि हैबिचुअल हो चुकी थी पूरी फैमिली कि वो अपने असिस्टेंट से ही सब चीज़ों के ऑर्डर देती थी, सब चीज़ें करती थी, तो फिर क्या हुआ कि उस दिन उनका सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया. उन्होंने कहा अरे हम नाउ वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस डूइंग दैट, तो अब कैसे करें. तो इस तरह से व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, एंड द consequences of these things, we have become lazy because of technology. We now have devices that can turn on our lights, adjust our thermometer, all system of our house. They can order food for us, and there are many other things what is happening in our day-to-day system. Then we are addicted to online shopping. We are oversharing our lives on social media, which is not very relevant thing. We are obsessed with taking selfies. We are watching more videos than ever before, and many other means total digital sociology is changing. And when these things are changing, it is creating problem in our life also. And how these things are creating challenges in our life, you can see. Now, again, I'll ask one question to all of you that have you heard about the Yuval Noah Harari, or have you gone through the books written by the Yuval Noah Harari? Any one of you? Meenakshi Singh, yes, you have gone through. Which book, madam? Which book? Homo sapiens. Okay, very good. Anyone else? Okay. Now see, the evolution in e-learning just because of the technology, and we are moving from past to future. Now here I'll discuss about the book written by the Yuval Noah Harari, and he has written 3 books, and books were very good. And how these things are related to the AI, I'll tell you. Because the first book which he has written, the name of the book is Homo sapiens, as Meenakshi ma'am said that she has gone through that book, and it was about the history of mankind. कैसे इस धरती पे होमो सेपियंस बने, कैसे उसने अपने ही साथ के बहुत सारे प्राणियों से अपने को जीत कर और वो इंसान बना, और आज उसने पूरे विश्व पे राज किया. तो दैट बुक
is about the history of mankind. कि human conquered the world to their unique ability, because of the unique ability. और उसमें जो एक आपने देखा होगा कि जो गॉड होता है, जो ईश्वर होता है, जो सुपर पावर होता है, उससे एक फियर होता था. तो कैसे धीरे धीरे उससे थोड़ा सा डर के उसने एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन रखा अपने लाइफ में. लेकिन जब धीरे धीरे ये चीजें हम टेक्नोलॉजी के युग में पहुंचे तो कैसे चीजें चेंज हुई. यानी उन्होंने कहा कि पहली बुक में होमो सेपियन की हिस्ट्री क्या है, फिर उन्होंने बताया कि जब जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हुआ, देन ही हैज रिटन सेकंड बुक. उस बुक में उन्होंने बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही बढ़िया चीजें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आज के हमारे, यानी दैट बुक वाज अबाउट द पास्ट एंड दिस बुक इज अबाउट द प्रेजेंट, कि 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी. यानी जो आज हमारे 21st सेंचुरी में ऐसी समस्याएं जिनको कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे भविष्य में कैसे वो हमको वो करेंगे, कैसे प्रभावित करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जाम्पल दिस AI, फॉर एग्जाम्पल दिस न्यूक्लियर पावर. ऐसी चीज़ों का समाधान क्या है, क्या करें हम कि हम कल को अच्छे से जीवन को जी पाएं. तो ही हैज़ रिटन अबाउट ऑल दीज थिंग्स. उन्होंने आज के युवा से खूब सारे प्रश्न उसमें किए कि अगर आपको मौका मिले तो आप आज हमारे सामने जो लोग लीडर्स हैं उनसे कौन से क्वेश्चन करेंगे, या आप ऐसे क्वेश्चन करिए जिससे कि वो भविष्य के बारे में आपको बता सके, स्पेशली अबाउट द जॉब्स एंड मेनी अदर थिंग. फिर उसके बाद तीसरी किताब जो उन्होंने लिखी है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड बुक्स, कि उन्होंने उसमें ये बताया कि होमो सेपियंस नाउ इन फ्यूचर भी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि 2030 के बाद कैसे होमो सेपियंस होमो डियोस बन जाएंगे. होमो डियोस का मतलब क्या है? बिकॉज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी रेगुलरली. जो हमारा फिजिक है, जो फिजियोलॉजी है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी. एक इंसान जो 2 पैरों पे चलता था, जो 2 पैरों पे सीधे खड़े रहता था, अब देखिए उसका जो फिजियोलॉजी है धीरे धीरे वो चेंज हो रही है. भविष्य में जो बच्चे भी पैदा होंगे उनका जो फिजियोलॉजी होगी वो क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं प्रभाव होगा, कहीं ना कहीं जो गर्दन का हिस्सा है उसमें प्रभाव होगा, जो हाथ का जो बेसिक जो एक नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज फॉर होल डे वी आर होल्डिंग आवर मोबाइल फोन्स इन आवर हैंड, for whole day we are using our both fingers like this, using laptop, desktop and other technologies. Then what will happen? The physiology. तो उन्होंने कहा भविष्य में जो ह्यूमन बीइंग है वो होमोडियोस कहलाएगा. और जब वो होमोडियोस बन जाएगा तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो कैसे जॉब करेगा, कैसे चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की. अब यहाँ पर देखिए, व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, because how AI will influence your life in future. अगर आप आज AI के बारे में प्रॉपरली बॉदर नहीं करेंगे तो कल को AI आपको कैसे कंट्रोल करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज हमारे लिए. तो एज द आपने देखा होगा कि हम जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक सेल्फ मेड गॉड है, कि हम इस प्रकृति को भी ईश्वर मानते हैं, इन चीज़ों को भी सब कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, सूरज है, चांद है, ये सब हमारे ईश्वर हैं, हम इनकी प्रेयर करते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमको कहीं ना कहीं एक जीवन दे रहे हैं. तो एज द सेल्फ मेड गॉड्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, विच प्रोजेक्ट्स should we undertake and how will we protect these fragile planet and humankind itself from our own destructive powers? You can understand that how we are using our power, means as a human being. आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था उस समय प्रकृति का बहुत ऐसे स्लोगन्स फ्लोट हुए थे हमारे इंटरनेट में कि प्रकृति ने कहा कि ह्यूमन बीइंग, हे मानव, तुमने मुझे मेरी धरती को और मुझे पॉलीथीन से पाट दिया है, इसलिए मैं भी तुमको पॉलीथीन से पाट दूंगी. यानी ये प्रकृति एक छोटी चीज नहीं है, अगर ये हमें जिंदा रख सकती है तो ये हमें मार भी सकती है. तो इस किताब में उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है. उन्होंने बताया कि दिस होमोडियोस गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ द ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स दैट विल शेप द 21st century.
जो हमारी आगे आने वाली सेंचुरी है उसको कैसे शेप किया जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने जो और ये सारी चीजें देखिए कि जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगी हमारे जॉब मार्केट को, हमारे एकेडमिक्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो यहाँ पे कि द फ्यूचर इन दिस बुक ही टोल्ड अस अबाउट द फ्यूचर एंड एक्सप्लोर्स हाउ ग्लोबल पावर माइट शिफ्ट एज द प्रिंसिपल फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, natural selection, and that natural selection will be replaced by the intelligent design. और इंटेलिजेंट डिजाइन आप समझते हैं, अभी प्रोफेसर गोयल ने भी बहुत अच्छे से चीजों को बताया कि यहाँ पर ये मशीन इंटेलिजेंट नहीं होती है, मशीन को हम ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट बना रहे हैं। और जहाँ पे हमने आलस किया तो ये मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी कि हमको सरपास करने लगेगी। और जब हमको सरपास करने लगेगी तो हमारा सर्वाइवल हमारे ही लिए चैलेंज बन जाएगा। तो इसमें जो इन्होंने बुक लिखी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, दिस बुक एग्जामिन्स दैट व्हाट माइट हैपन टू द वर्ल्ड व्हेन ओल्ड मिथ्स मीन्स ओल्ड मिथ्स, जो पुरानी हमारी चीजें जिनको हम मानते हैं, आर कपल्ड विद न्यू गॉड लाइक टेक्नोलॉजीज। न्यू गॉड लाइक टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपने सुना होगा कि आज अगर हम चाहें कि अगर फ्यूचर में जो बच्चे हों उनकी आईज ऐसे हों, उनके बाल ऐसे हों, उसका चेहरा चमकता हुआ हो, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारी ऐसी ही चीज़ों को कर सकते हैं। तो हमारा विश्व, हमारा कहाँ जा रहा है ये सोसाइटी, कि ये जो गॉड लाइक टेक्नोलॉजीज आज हो गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये हमको किस दिशा में ले जाएंगे? What will happen to the democracy when Google and Facebook come to know our likes and our political preferences better than we know them ourselves? Google और Facebook आपको आपसे अच्छा चीजें बता देंगे कि आपके बारे में, कि आप ये जानते हैं, ये समझते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन टू द वेलफेयर स्टेट व्हेन कंप्यूटर्स पुश ह्यूमंस आउट ऑफ द जॉब मार्केट एंड क्रिएट अ मैसिव न्यू यूजलेस क्लास? क्या होगा अगर एक बहुत बड़ा यूजलेस क्लास सामने आ जाएगा हमारा? तो यहाँ पे इन चीज़ों का यही प्रश्न आज सामने आता है कि हम आगे बच्चों को कैसे टीच करें, आज की जनरेशन को हम कैसे पढ़ाएं, कैसे एजुकेशन। जैसे कि बार बार प्रोफेसर धनंजय सर ने कहा कि पेडागॉजी के बारे में, अब हमको पेडागॉजी पता ही नहीं है कि कैसी होनी चाहिए भविष्य के लिए, तो हम कैसे तैयार करेंगे बच्चों को? That is why we need to know the present digital pedagogy, the all types of pedagogy, what we need to know so that we can teach our future generation. तो यहाँ पे वही आता है कि how would you prepare your children for the year 2050 or even year 2100? कैसे आप पढ़ाएंगे कि ये बच्चे कल के लिए तैयार हो सकें? And it is a great question, especially because nowadays no one knows what the world will even look like that time. कैसा दिखेगा विश्व, कैसा बनेगा? आप खुद देखिए इन चीज़ों को। यानी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस encompasses a vast array of techniques and approaches including machine learning, natural language processing, computer vision, robotics and expert system. तो अब ये जो फ्यूचर है AI का वो क्या है? अभी आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम आपसे बात करें AI को बताने से पहले कि इस समय जो जनरेशन गैप हमको दिख रहा है वो क्या है, किसको हम कह रहे हैं जनरेशन गैप? ये क्वेश्चन आप लोगों से, that what is the actual meaning of generation gap? Just in one sentence. Yes, please. What is the meaning of generation gap? Trishala ma'am, there is one request from you. Please let me know the timing also for my interaction. कब तक हम वो कर सकते हैं? टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है आपका, इसलिए। Yes ma'am. Ma'am, 15 minutes you can carry on.
Okay, thank you. Yes. Generation gap. Any one of you, please let me know in one sentence, क्या होता है ये? ऐसा कठिन प्रश्न तो नहीं है ये हमारा. ओके, चलिए. When I am discussing the concept of generation gap, okay, Dr. Tiwari is saying difference in behavior between two generations, understanding, difference in thinking. Difference of thoughts, ma'am. Okay, difference in thoughts, difference in actions, thoughts. Okay, very right. Thank you, everyone. So you can see that divergence in thought process, beliefs, opinion, and even in value system between different generations. And in today's context, if we will see, this gap is often perceived between youth, their parents, and their grandparents. So you can see right now we are having three kinds of digital generation. First is digital immigrants, means these individuals belongs to the older generation, having been raised before the advancement of all these digital technology. यानी जो लोग आज भी सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज भी अपनी चीज़ों को डायरी में नोट करते हैं, रजिस्टर में नोट करते हैं, यानी they are most of the time they are using all traditional methods in their lives. वो digital immigrants हैं. And second generation is digital natives. Digital natives का मतलब क्या है? This group occupies a middle ground between full immersion in technology and reliance on traditional methods also. Maybe you and I also belong to this particular generation because I'm using both the things. Sometimes traditional methods and sometimes latest technologies also. But in future, and after 2010, those who born after 2010, they are digital inhabitants. This is the generation. Means this generation is representing the youngest cohort, and these individuals have grown up surrounded by the technology. जितने डिजिटल टूल्स हैं, जितनी चीजें हैं, ये सारी ये जनरेशन यूज कर रही है. Now you can see as a teacher, if we are digital immigrants, or we are digital natives, but we have to teach this digital inhabitants. So what we need to bridge this gap. ये जो जनरेशन का गैप आ रहा है, एज अ टीचर वी नीड टू ब्रिज दिस गैप, कि हमको जो आज की लेटेस्ट पेडागॉगी है, जो सिंपल पेडागॉगी, टीचिंग पेडागॉगी से लेके जो लेटेस्ट पेडागॉगी है, कि हम इस आने वाली जनरेशन को, जिसका हाल आप देख रहे हैं कि आते ही पैदा होते ही वो कंप्यूटर और इतनी टेक सेवी हो जाती है, इस जनरेशन को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हम इसको भविष्य के लिए तैयार करेंगे, कैसे हम इन चीज़ों को आगे आने वाले समय के लिए वो करेंगे. क्योंकि पहले क्या होता था कि ओल्ड टेक्नोलॉजी जो थी कि भाई एक टीचर था, सारे ज्ञान को बच्चे के माइंड में डाल देता था, वही आज मशीन कर रही है. लेकिन बीच में टीचर एक ऐसा कॉम्पिटेंट टीचर होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ज्ञान को उड़ेलना नहीं है उसके माइंड में विद द हेल्प ऑफ मशीन, लेकिन उसको एक सही गलत का डिस्क्रिमिनेशन. अभी जो हम AI की बात कर रहे हैं, और AI में आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग व्हाटएवर this particular AI is telling you, you are just obeying that only. Chat GPT में आप देखिए, अभी हम लोगों ने एक सेमिनार किया था, उसमें जब पेपर्स हमने मंगाए तो उसमें बहुत अफसोस होता है ये देख के कि वो चैट GPT से कॉपी पेस्ट कर देते. इवन दिस जनरेशन इज नॉट बॉदरिंग अबाउट रीराइटिंग और चेकिंग दोज पेपर्स कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, जो कुछ वो कह देता है. मतलब अभी तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिखा, या अभी तो आपने सिर्फ एक प्रपोजल दिया, अभी तो सिर्फ सोचा और उसमें सारे रिजल्ट्स तक लिख डाले आपने. क्यों? क्योंकि चैट GPT ने दे दिया. तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक शब्द को समझना कि whenever we are using AI, we should be responsible in using AI. Why? In these two lines, I can say that we should consider the ethical issues of using AI.
एथिकल इश्यूज का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 लाइनों से स्पष्ट करेंगे कि संभल संभल कर रखते हैं कदम, संभल संभल कर रखते हैं कदम इस जहां में, यानी इस एआई की दुनिया में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि पता है नफस नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है। नफस नफस यानी पल पल का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है। एज अ टीचर, as a scholar, we are accountable for each and everything, whatever we are doing, whatever we are writing, whatever we are speaking in this virtual world. So be cautious and always use responsible AI, always be responsible whenever you are using AI. बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको किस सही तरीके से करना है वो एक टीचर का फर्ज है जानना और समझना। तो जो एआई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बिकॉज टाइम इज रनिंग शॉर्ट, few things I would like to tell you about these things, that what type of skills as a teacher we should have while using AI. बस उस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि इसको अभी ज़्यादा बताने का टाइम नहीं है। तो दिस इज AI and you know what is AI means artificial इंटेलिजेंस, यानी जो मशीन हमको अपनी बुद्धि से जो कुछ काम करवा रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और यहाँ पे सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी हम जो सोच रहे होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग वो उसमें और एड ऑन करके हमारे सामने चीज़ों को प्रेजेंट कर देती है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। जस्ट लेट मी कम टू द मेन पॉइंट, जस्ट अ मोमेंट। Sorry, my screen again. Yeah. So you can see that why we need to know about the artificial intelligence. ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम एज अ टीचर क्यों जाने इसके बारे में और क्या जाने, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे को आनी चाहिए इसको, यानी इसके यूज करें, क्योंकि AI इज अ वेरी ब्रॉड एरिया। अब ये नहीं हम कह सकते कि विद इन 1 or 2 days you will learn about the AI. आपको AI, बिकॉज वी आर नॉट कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, वी आर टीचर्स, तो हमें ये नहीं जानना है AI कैसे बनता है, कैसे होता है, कैसे इसमें का, लेकिन जो कुछ हमारे पास सामने है, अगर कोई टूल है तो उसका यूज कैसे करना है, उसको कैसे जानना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता दें कि हम और आप इन चीज़ों को अपने आप सीखने की इच्छा तो रखते हैं, बट नाउ अ डेज वाई ऑल दीज काइंड ऑफ, जैसे डॉक्टर त्रिशाला, प्रोफेसर जोशी ने ये जो आपको ये प्रोग्राम करा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? बिकॉज नाउ देयर आर नो इंस्टीट्यूशन दोज हु विल टीच यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन ये जो इस तरह के CPD, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड, and these programs are only able to teach you about the latest technologies. तो क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारी पॉलिसीज, जो हमारी एकेडमिक पॉलिसीज हैं, ये हमको कहती हैं कि नाउ यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे, आप फ्यूचर जनरेशन को तैयार नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव फ्यू obligations as a higher education teachers, we have few obligations. आपने देखा होगा, आप लोग अपना API फॉर्म भरते हैं कैश के लिए, आप कहीं पे कैडर की पोस्ट भरनी हो तो उसके लिए, and you know about all this API, academic performance indicator. तो जब आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपने देखा होगा ये फॉर्म पूरा बेस्ड होता है whatever work you do in your higher education institution. और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 5 काम ऐसे होते हैं विच आर मैंडेटरी फॉर यू ऑल। 5 चीजें, फर्स्ट इज टीचिंग, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, थर्ड इज रिसर्च, फोर्थ इज एक्सटेंशन सर्विसेज, एंड फिफ्थ इज कंसल्टेंसी। ये 5 चीजें आपको करनी ही करनी होती हैं। तो जब हम अपना API का फॉर्म देखते हैं तो यू मस्ट हैव सीन देयर आर 3 कैटेगरीज इन API फॉर्म, and in first and second is related to teaching and administration. Third is very very important, for which you need all kinds of documentation also, and you need to learn about each and everything.
थर्ड कैटेगरी के को आगे फर्दर 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और उसकी जो कैटेगरी 3 का जो F सेक्शन है उसमें कहा गया है कि नाउ, अभी हम आपको बताया कि ना कि आपको कौन सी जनरेशन को पढ़ाना है, डिजिटल इनहेबिटेंट्स को। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने को प्रिपेयर करने के लिए, यू नीड टू नो द लेटेस्ट पेडागॉजी, यू नीड टू नो द लेटेस्ट थिंग्स। वो लेटेस्ट चीजें क्या हैं, उसमें API 2018 में साफ साफ बताया गया दैट क्रिएशन ऑफ ICT मीडिएटेड लर्निंग, pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर इसको नहीं जानेंगे धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। ये जो बार बार प्रोफेसर जोशी ने भी कहा कि आपको पेडागॉजी के बारे में पता तो होना ही चाहिए, लेकिन लेटेस्ट पेडागॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कैसे करेंगे। इसमें उन्होंने कहा, इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागॉजी, सेकेंड इज डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज, थर्ड इज MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। You should be able to develop MOOCs, or you should be able to contribute in the development of MOOCs, and fourth is e-content। हम यहाँ से कंटेंट को लेते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, वो e-content नहीं होता है। इसकी प्रॉपर पॉलिसीज है, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन है। यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और इन चीजों के डेवलपमेंट में नाउ AI टूल्स आर हेल्पिंग अस लॉट, बहुत हेल्प कर रही हैं। कि अगर हम जो चीज इमेजिन करते हैं कि सपोज आई हैव टू डेवलप अ MOOC ऑन दिस, आपको जो AI टूल्स हैं बहुत हेल्प करते हैं। ये आपके असिस्टेंट है, ये आपके हेल्पर हैं, बहुत अच्छे सपोर्टिव है, सपोर्ट देते हैं आपको कि हाउ यू कैन डेवलप ऑल दीज थिंग्स फॉर योर स्टूडेंट्स इन योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये चीज़ों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज आपका ये स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ वाई जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट, आई एम गिविंग यू गाइडलाइन। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर। जस्ट you need to know about the various latest AI tools। तो अब यहाँ पे टीचिंग टूल्स, मेथडोलॉजी, इसके प्लेटफॉर्म्स, यू नीड टू नो वेरियस अदर थिंग्स, टूल्स हैं, मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कैसे करें। अब आप इस पिक्चर को देखिए, वर्किंग विद AI, वर्किंग विदाउट AI, यानी ये एक ह्यूमर ज़रूर है, बट दिस इज नाउ बिकमिंग अ रियलिटी कि हम अपने एकेडमिक पर्सनालिटी को बहुत सिस्टमैटिक और स्मार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज AI टूल्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये लास्ट में बिकॉज टाइम कम है तो हम थोड़ा सा इसको बता के वाइंड अप करेंगे दैट व्हाट स्किल्स डू न्यू एज टीचर्स नीड टू नो अबाउट। उसमें हम ये 5 T's की बात करते हैं, एंड दीज 5 T's आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर, एज अ हायर एजुकेशन टीचर। अगर हमको अपना API एनहांस करना हो या एकेडमिक पर्सनालिटी एनहांस करनी हो तो ये 5 T's के बारे में आना बहुत ज़रूरी है। नाउ सी, फर्स्ट T is related to transition. Now transition means education has transformed significantly from traditional classroom to modern virtual environment, and you can see all the after COVID, you can see the learning environment, how it is changing. And AI is further accelerating this transition by personalizing learning experiences and automating administrative tasks also. Teachers must embrace these changes. यानी ये जो transition हो रहा है, ये changes teachers को बहुत ज़रूरी है अडेप्ट करना। ये न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मेथडोलॉजीज, और हमने आपको पहले भी बताया कि अब हमारी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। वी शुड बी विलिंग टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, एंड टीचर्स मस्ट बी ओपन टू दिस कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ अडेप्टेशन। जितना भी ट्रांजिशन हमारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रहा है वो हमको यूज करना ही करना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट T, that is transition. Second is technology, means
AI is reshaping the educational landscape, making technological proficiency a critical skill for teachers. From AI-driven learning management system to intelligent tutoring system. And technology can enhance teaching effectiveness and student engagement. So, as a teacher, means teachers need to view AI as a partner. And if you will use this particular technology of AI as a partner, it will enhance your academic personality also. So technology is the second T, which is very, very important to know. Then third is tools. Tools means AI introduces new tools that can transform education, such as predictive analytics to identify students' learning needs, virtual reality for immersive learning experiences, AI-driven content creation. And these tools, once considered optional, are now becoming essential. पहले हम सोचते थे अरे इनका यूज करें ना करें, नो. अब क्या है, अब दौर ऐसा है कि now these are becoming mandatory for all of us. And teachers who can master these innovative tools will lead the way in creating a more engaging and effective educational experiences for their student. अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एक टास्क दिया कि यू हैव टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. अब जो लोग लगे हुए हैं एक ट्रेडिशनल तरीके से पावर पॉइंट बनाने में, तो वो बना लेंगे, सिंपल तरीके से बना लेंगे. लेकिन those teachers who will use AI tools, they will make their PPT within few seconds and in a very innovative way. लेकिन बस चीज वही है कि how you are using those AI tools. That is very important. Then next T is training. Training means अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि इस तरह के जो FTP शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हो रहे हैं, you need to attend those training programs, those capacity building programs, because continuous professional development is crucial in the AI enhanced educational landscape. And in NEP also it is said that CPD is now very, very important for teachers. And teachers need to stay updated with the latest AI technologies and pedagogical strategies. ये सारी चीजें कि आज हमको कल को बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी पेडागोगी को वो करना होगा. अब सिंपल पेडागोगी की जगह क्या है कि आपके, अब हम बात किसकी करते हैं कि ह्यूटोगोगी की, कि इसको कैसे करना है, कैसे एडल्ट लर्नर्स को पढ़ाना है, कैसे वो करना है. तो लेटेस्ट चीजों को सीखना बहुत जरूरी है. सो एंगेजिंग इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग थ्रू दिस काइंड ऑफ कोर्सेज, वर्कशॉप एंड ग्लोबल नेटवर्किंग विल हेल्प टीचर्स to refine their teaching skills and stay ahead in their teaching profession. So ability to integrate this kind of AI effectively into their teaching practice will set successful teachers apart. So try to learn each and everything according to the need of the hour with the help of these kind of trainings. And the last one is touch. Now, what is the meaning of touch here? Means despite the advancement in AI, the human touch in education remains irreplaceable. इन चीजों को हम बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकते. ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे टच का मतलब क्या है आपने देखा होगा. whenever we are taking face to face classes and when we are saying oh शाबाश, you have done a good job, बच्चे के सिर पे हाथ रख देते हैं और इतना सा भी कहते हैं, तो ये क्या होता है कि ह्यूमन टच है. And when we are using all these technologies, how to integrate this personal touch in our teaching and learning process, that is also a very, very important. आजकल हम लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं कि whenever we are using virtual environment, how we can touch the heart of our students as a teacher, as a human teacher. इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं कि क्योंकि अब जमाना तो इसी का ही रहना है. हम पीछे जाएंगे भी तो बहुत कम एक्सटेंट तक जा सकते हैं, इसलिए इन चीजों में. यस प्लीज. Sorry to disturb you. Yeah. Ma'am, please kindly wind up the session because our second resource person is waiting. Okay, just in 2 minutes I'm winding it up. Oh, okay, ma'am. Okay. So teachers must bring their unique touch to every interaction, fostering a supportive and
motivating learning environment. And this personal touch combined with AI capabilities will create a balanced and effective educational experience. तो ये जो हम आपसे AI की बात कर रहे थे कि AI is just not a tool but a transformative force in education, and by mastering these 5 T's means transition, technology, tools, training and touch, teachers can harness AI to enhance their teaching, meet the demand of the future and continue to shape the lives of their students positively. So this was all about the today's interaction, and just again with 2 lines, I would like to wind up my this interaction कि ये जो हमारा जो आजकल वर्चुअल वर्ल्ड का जो ये चल रहा है कि बड़ा अजीब सा फलसफा है इस AI की दुनिया का, बड़ा अजीब सा फलसफा है इस AI की दुनिया का, क्योंकि यहाँ पर हमें तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं. As a teacher, we need to adopt all these things, all these AI technologies, but again, we should consider ethical issues and many other aspects of the teaching and learning process. So thank you everyone, and my best wishes to all of you. Thank you. Thank you so much, ma'am. You took Thank you. time out from your busy schedule and accepted our invitation and joined our session. Thank you so much for all the words of wisdom which you shared with us today, ma'am. Thank you once again. Ma'am, it was really a wonderful session. Thank you so much. Quick minute break and we join back at 12:25. The resource person is already with us for the next session. So we'll just take a 3-minute break, not more than that. And we'll join on another link which is already shared in the group.